السلام علیکم دوستو، سال 1839 کی بات ہے۔ ایک امریکی وکیل جان الائڈ اسٹیفنز اور ایک انگریز آرٹسٹ فریڈ کیتھرو ووڈ سنٹرل امریکہ کے جنگلات میں گھوم رہے تھے۔ انہیں کوپان کے کھنڈر ملے، بڑے بڑے پتھر کے مجسمے، پیچیدہ نقش و نگار اور پیرامڈز جو آسمان کو چھو رہے تھے۔ ایسے بڑے بڑے پیرامڈز جو سوچنے پر مجبور کر دیں۔ اب انہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کھنڈر کس کے ہیں، کتنے پرانے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں، پلینکی، ایکسمل اور درجنوں شہروں کے وہاں پر نشان ملتے ہیں۔ ان کی کتابیں انسیڈنٹس آف ٹریول ان سینٹرل امریکہ اور یوکاٹان نے ویسٹرن دنیا کو حیران کر دیا۔ پہلے یہ دونوں سوچتے تھے کہ امریکہ میں صرف وحشی قبائل رہتے ہیں، لیکن یہاں تو ایک ایسی سویلائزیشن تھی جو میتھمیٹکس، اسٹرانومی اور شہری منصوبہ بندی میں یورپ سے بھی آگے تھی۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ گریٹ سویلائزیشن کہاں غائب ہوگی؟ کیسے ہزاروں کی آبادی والے شہر اچانک ایک دم سے خالی ہو گئے؟ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں مایا سویلائزیشن کا پر اسرار سفر، آغاز سے عروج تک اور اس کے بعد زوال جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ میسو امریکہ کے جنگلات میں آج سے ہزاروں سال پہلے چند قبائل رہتے تھے جو جانوروں کا شکار اور جنگلی پھل جمع کر کے زندگی گزارتے تھے۔ پھر تقریباً 2000 قبل مسیح ایک بڑی تبدیلی آئی۔ ان لوگوں نے زمین کو کاشت کرنا سیکھ لیا اور یہی قدم آگے چل کر مایا تہذیب کی بیس بنا، اور اس زراعت کی بنیاد تھی مکئی۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ قدیم مکئی کی تصاویر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکئی قدرتی طور پر ایسی نہیں تھی جیسی آج ہمیں دکھتی ہے؟ مایا کے پرانے لوگوں نے ایک جنگلی گھاس جسے ٹیوسنٹ کہا جاتا ہے، اسے ہزاروں سال تک سلیکٹیو بریڈنگ کے ذریعے ایک شکل میں ڈالا۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جینیٹک انجینئرنگ تھی۔ مایا لوگوں کے لیے یہ صرف ایک فوڈ نہیں تھا، بلکہ ان کا ریلیجن، ان کی اکانومی اور سب چیزوں کی بیس اس مکئی پر تھی۔ ذرا امیجن کریں، بغیر جدید آلات کے انہوں نے مکئی کو اتنا امپورٹنٹ بنا دیا کہ آج دنیا کی تیسری سب سے بڑی فصل ہے۔ نیشنل جیوگرافک کے مطابق مایا لوگوں نے ایک خاص ایگریکلچر میتھڈ بنایا جسے ملپا سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس میں مکئی، لوبیا اور اسکواش ایک ساتھ اگائی جاتی تھی۔ لوبیا زمین کو نائٹروجن مطلب طاقت دیتی تھی، اسکواش زمین کو ڈھانپ کر گھاس کو بڑھنے سے روکتی تھی، اور مکئی باقی فصلوں کو سہارا دیتی تھی۔ یہ طریقہ آج بھی یوکاٹان میں استعمال ہو رہا ہے، وہ بھی بغیر کسی کیمیکل کھاد کے۔ Beans and all kinds of squash over اب here. سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ایگریکلچر سسٹم اس پرانے علم سے کچھ سیکھ سکتا ہے؟ ہمارے پاس اس دور میں جدید مشینری اور کیمیائی کھادوں کے باوجود ہم زمین کی صحت اور پائیداری میں مایا کے انٹیگریٹڈ ایگریکلچر سسٹم کے سامنے ابھی بھی کمزور ہیں۔ اب اس کے علاوہ آپ مایا سیولائزیشن کے کچھ انوکھے اور حیران کن فیکٹ دیکھیں۔ مایا سیولائزیشن ایک گیم کھیلتے تھے، ایک ایسا بال گیم جس میں ہارنے والے کو سیکریفائس کیا جاتا تھا، ایک ایسا کھیل جو بالکل فٹ بال جیسا تھا، لیکن یہاں ہاتھ کا استعمال بالکل منع تھا۔ کھلاڑی اپنے جسم کے اسپیسیفک پارٹس یعنی نیز، ہپس اور ایلبوز کا استعمال کرتے ہوئے ہارڈ ربر بال کو کھیلتے۔ کھیل کا مقصد یہ تھا کہ بال کو ایک سٹون ہوپ سے گزارا جائے، لیکن ہاتھ کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ زیادہ تر جسم کے قدرتی حصے استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ کھیل صرف فزیکل سکلز اور پاور کا امتحان نہیں تھا، بلکہ ریلیجیس اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ تھا، کیونکہ جیتنے والے یا قربانی دینے والے کو ایک پراؤڈلی یا آنریبل سمجھا جاتا تھا۔ اس کھیل میں استعمال ہونے والی ربر بالز بھی مایا لوگوں نے تیار کی۔ مایا نے چاکلیٹ ایجاد کی، کوکو سے ایک مشروب بنایا اور ربر بالز بھی تیار کی۔ حال ہی میں نیچر میگزین 2024 میں ریلیز ہونے والی اسٹڈی بتاتی ہے کہ مایا کے شہروں میں واٹر مینجمنٹ اتنا ایڈوانس تھا کہ وہ آج کے شہروں کے نظام سے بھی بہتر تھا۔ پری کلاسک دور میں یعنی تقریباً 2000 قبل مسیح سے 2050 عیسوی کے درمیان مایا سیولائزیشن نے مستقل بستیاں بنانی شروع کی۔ انہوں نے ایسے شہر بنانا شروع کیے جو اپنے دور سے کہیں آگے تھے، اور پھر ایک ایسا شہر ابھرا جو سب کو حیران کر دیتا تھا، ایل میرادور۔ یہ پری کلاسک دور کا سب سے بڑا شہر تھا۔ 16 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ شہر اور اس کا لاڈانٹا پیرامڈ۔ ذرا سوچئے، بغیر ویلز کے، بغیر جدید اوزاروں کے اور بغیر بوجھ ڈھونے والے جانوروں کے انہوں نے کیسے اتنے بڑے بڑے پتھر اس جنگل کے بیچوں بیچ لا کھڑے کیے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی جو ہمیں نہیں بتائے گی، یا ان کی آرگنائزیشنل اسٹرینتھ اتنی زیادہ تھی کہ سب ہی لوگ ایک ہی مقصد کے لیے شروع ہو گئے؟ اسمتھسونین میگزین کے مطابق یہاں پر 800 سے بھی زیادہ اسٹرکچرز تھیں اور شاید لاکھوں لوگ یہاں پر آباد تھے۔
मगर वक्त ने इस सिविलाइजेशन को जंगल में दबा दिया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसा क्यों हुआ, ये आगे चलकर हम जानेंगे। प्री क्लासिक दौर के बाद साल 250 से साल 900 तक आता है क्लासिक दौर। माया सिविलाइजेशन का ये सुनहरी दौर था। टाइकाल, प्लैंक, कापान, काला कम्मल जैसे शहर अरूज पर थे। आप स्क्रीन पर टाइकाल का मॉडल देखें। टाइकाल में 60,000 से ज्यादा आबादी थी। काला कम्मल दुनिया का सबसे बड़ा माया शहर था जिसने दर्जनों छोटे छोटे शहरों पर हुकूमत की। हर शहर का अपना खुदाई बादशाह होता था जो देवताओं का रिप्रेजेंटेटिव समझा जाता था। इनके बादशाह खुद को कुल कहलवाते थे, यानी आला हुक्मरान। वो खुदाई ताकत का दावा करते थे और उसे साबित करने के लिए वो पिरामिड्स और बाल कोर्ट्स बनवाते थे। प्लैंक में पकाल का ये मंदिर देखें जिसकी दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है, शायद माया लोगों की अपनी जुबान में कुछ लिखा हुआ है। आप स्क्रीन पर टाइकाल के पिरामिड्स देख सकते हैं जिनको अगर जंगल में दूर और ऊंची जगह से देखा जाए तो जंगल के ऊपर तक नजर आ रही है। दोस्तों, माया सिविलाइजेशन की असल ताकत इनकी साइंसी कामयाबियों में थी। माया सिविलाइजेशन की असल बड़ी कामयाबी इनके पत्थर के महल नहीं बल्कि इनका साइंसी दिमाग था। जहां पर अभी बाकी दुनिया गिनती सीख रही थी, माया सिविलाइजेशन जीरो का तस्वर इस्तेमाल कर रहे थे। मिसाल के तौर पर अगर आपने 203 लिखना है तो सिफर के बगैर 203 लिखना मुश्किल है। सिफर ने बड़े नंबर्स को आसान और समझने के काबिल बना दिया। सिफर का सबसे पहला तस्वर भारत के ग्रेट मैथमेटिशियन ने कायम किया। इसके बाद माया सिविलाइजेशन ने इसे इंडिपेंडेंटली इजाद करके अपनी मैथमेटिकल पावर दिखाई। माया सिविलाइजेशन का डेसिमल सिस्टम 20 की बेस पर था। आज हम डेसिमल मतलब 10 की बेस पर हम काम करते हैं। डेसिमल सिस्टम 10 की बेस पर है क्योंकि इंसान के पास 10 उंगलियां होती हैं। हम गिनती शुरू करते हैं 0 से 9 तक और जब 9 के बाद एक और चीज आती है तो हम नया नंबर बना लेते हैं 10। लेकिन माया 20 की बेस पर काम करते थे। जब उन्होंने देखा कि हाथों की 10 उंगलियां और पैरों की भी 10 उंगलियां हैं तो उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 20 उंगलियां बनती हैं। इसी 20 की बेस पर माया लोगों ने अपनी गिनती का निजाम बनाया। वो 0 से लेकर 19 तक काउंटिंग करते थे और जब 19 के बाद एक और चीज आती तो वो कहते कि अब एक 20 का ग्रुप मुकम्मल हो गया। जैसे हम नॉर्मल किसी 10 के ग्रुप को एक साथ ऐड करते हैं तो हम कहते हैं 10, 20, 30, 40। बिल्कुल इसी तरह माया सिविलाइजेशन कहते थे 20, 40, 60, 80। इस मेथड का फायदा ये था कि बड़े नंबर्स आसानी से लिखे जा सकते थे, हिसाब या कैलकुलेशन करना आसान हो जाता था। ब्रिटानिका के मुताबिक इन्होंने पोजिशनल नोटेशन इस्तेमाल की जो आज की कंप्यूटर की बेस है। बगैर सिफर के, बगैर जीरो के कंप्यूटिंग नामुमकिन होती। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से तकरीबन 1500 साल पहले माया सिविलाइजेशन सिफर का तस्वर इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि यूरोप अभी न्यूमेरिकल्स पर थे जिसे हम रूमी नंबर्स कहते हैं, जो कि बड़ी कैलकुलेशन के लिए मुश्किल थे। माया सिविलाइजेशन का वक्त नापने का सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज्ड था। इनके पास एक नहीं बल्कि 3 डिफरेंट कैलेंडर सिस्टम मौजूद थे। जोकिन इनका एक ऐसा मुकद्दस कैलेंडर था जो 260 दिनों पर मुश्तमिल था। ये कैलेंडर इनकी आम जिंदगी के लिए नहीं बल्कि रिलीजियस फेस्टिवल्स और स्पेशल इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होता था। दूसरा कैलेंडर हाब कहलाता था जो 360 दिनों पर मुश्तमिल शमसी कैलेंडर था जिसे सोलर कैलेंडर कहा जाता है। तीसरा और सबसे लॉन्ग काउंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सालों के वक्त को नापने के लिए बनाया गया था और ये सब इनके 20 बेस्ड काउंटिंग के सिस्टम पर खड़ा था। अब जरा इनकी एस्ट्रोनॉमी को देखें। माया सिविलाइजेशन ने वीनस स्टार के मुद्दार का ऐसा हिसाब लगाया जो आज के मॉडर्न सैटेलाइट डेटा से भी सिर्फ चंद सेकंड का फर्क रखता है। वो सूरज गिरन और चांद गिरन की प्रेडिक्शन सैकड़ों साल पहले कर सकते थे, वो भी बगैर कंप्यूटर और बगैर किसी दूरबीन के। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब इस सिविलाइजेशन के पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, तो कैसे इस सिविलाइजेशन ने यूनिवर्स के इतने कॉम्प्लिकेटेड सीक्रेट्स को जान लिया? क्या माया सिविलाइजेशन सिर्फ सितारों को देख रही थी या फिर सितारे खुद माया सिविलाइजेशन को अपने राज बता रहे थे? माया का हायरोग्लिफिक राइटिंग सिस्टम दुनिया के सबसे डिफिकल्ट लिखने के सिस्टम्स में शुमार होता है। इस निज़ाम में 800 से ज्यादा ग्लिफ्स शामिल थे। ग्लिफ्स से मुराद ऐसी अलामतें हैं, ऐसे निशान हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये सिर्फ तस्वीरी निशान नहीं होते बल्कि इनके अंदर आवाज़ और इनका मतलब दोनों शामिल होते हैं। और इसी राइटिंग सिस्टम की वजह से माया के बादशाहों की स्टोरीज, जंगलों के रिकॉर्ड, ट्रांसफर ऑफ पावर और पॉलिटिकल डिसीजंस की फुल डिटेल्स मालूम होती है। क्लासिक दौर में साल 250 से साल 900 के दरमियान 2 सुपर पावर्स के दरमियान एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया। एक तरफ था टाइकाल और दूसरी तरफ था काला कमोल।
इन दोनों के दरमियान दुश्मनी सैकड़ों साल चली। ये गेम ऑफ थ्रोन्स का रियल वर्जन था, जासूसी, सियासत, शादियां और अचानक हमले। लेकिन इसी कंट्रोवर्सी के बीच माया ने अपने आर्किटेक्चर सिस्टम को अरूज तक पहुंचाया। हर बादशाह दूसरे से बड़ा मंदिर बनाना चाहता था ताकि अपनी ताकत का इजहार कर सके। लेकिन यही मुकाबला, यही जंग इनकी तबाही की पहली सीढ़ी बनने वाला था। लेकिन कैसे? आइए एक डीप एनालिसिस करते हैं कि वो क्या चीज थी जिसने इस ग्रेट सिविलाइजेशन को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। हालिया रिसर्च एक चौंका देने वाली हकीकत सामने लाती है कि माया की सबसे बड़ी ताकत इनके पिरामिड्स थे। इन मंदिरों को चमकाने के लिए चूने का प्लस्तर इस्तेमाल होता था। इस चूने को बनाने के लिए लकड़ी की आग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ एक बड़ी इमारत को बनाने के लिए मीलों तक फैले जंगलात को काट कर जलाया गया। जब जंगल खत्म हुए तो बारिशें कम होने लगी, मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म होगी और टेम्परेचर बढ़ने लगा। और इसके साथ आई इस सदी की बदतरीन खुश्क साली। सेडिमेंट्स की स्टडी से एक्सपर्ट्स को यह पता चला कि 9वीं सदी में कई सालों तक बारिशें नहीं हुई। सेडिमेंट्स का मतलब वो मिट्टी, वो पार्टिकल्स हैं जो वक्त के साथ झील के नीचे जमा होते रहते हैं। और यही लेयर्स हमें माजी के मौसम का रिकॉर्ड देती हैं। जब इतने लंबे अरसे तक बारिश न हो तो फसलें नहीं उगती, और जब फसलें खत्म हो जाएं तो इसका सीधा रिजल्ट भूख की सूरत में निकलता है। अब जरा ये सोचिए कि अगर आप माया सिविलाइजेशन के एक आम शहरी होते या फिर आप जगह कोई और इंसान होता, तो उसका खुदाई बादशाह जो खुद को खुदाई बादशाह कहलवाता वो बारिश लाने में नाकाम रहता, तो उस इंसान का या आपका क्या रिएक्शन होता? बिल्कुल इसी तरह आवाम का उस वक्त भी अपने हुक्मरानों, देवताओं और बादशाहों से यकीन उठ गया। शहरों में अफरा तफरी फैल गई, बगावतें हुई और लोग इस अजीम शहर को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। हम अक्सर सुनते हैं कि माया सिविलाइजेशन एकदम से खत्म होगी, उनका बिल्कुल नामो निशान खत्म हो गया। हम वीडियोस और रिपोर्ट्स में ये देखते हैं। असल सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई माया खत्म हो गई या फिर उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने एडवांस लेवल तक पहुंचा हुआ इल्म छोड़कर कहीं और मुंतकिल होना मुमकिन समझा। लेकिन हकीकत इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जनूबी शहर जैसे कि टाइकाल ये वक्त के साथ तबाह हो गए, लेकिन शमाल में मौजूद कुछ शहर जैसे चीचन इत्जा कई सौ साल तक अपने कल्चर और नॉलेज को मेंटेन करते हुए सरवाइव करते रहे। ग्वाटेमाला, मेक्सिको और बेलीज में 7 बिलियन से ज्यादा माया आज भी मौजूद हैं। 30 से ज्यादा जुबानें आज भी बोली जाती हैं। वो अपने रवायात, कैलेंडर और ज़रात को अभी भी जारी रखे हुए हैं। माया का फाइनल डाउन इस वक्त आया जब 16वीं सदी में स्पेनिश हमलावर वहां पहुंचे। वो जंग के साथ नहीं बल्कि अपने साथ ऐसी बीमारियां लेकर आए थे जैसे कि स्मॉल पॉक्स, जिनके खिलाफ माया के जिस्म में कोई इम्यूनिटी मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से वो लंबे वक्त तक सरवाइव नहीं कर पाए। इमेजिन करें हजारों साल की तरक्की और इतना कॉम्प्लेक्स सोशल एंड कॉग्निटिव सिस्टम अचानक एक अननोन वायरस के सामने बेबस। आज के जमाने में सिर्फ 4 असली बुक्स माया की महफूज हैं, और फिर 19वीं सदी में स्टीफन्स और कैथरवुड ने माया के खंडरों को दुनिया के सामने लाया, और इनकी ड्राइंग्स और बुक्स आज भी इंतहाई दुरुस्त और काबिल एतमाद हैं। और इनके काम की ही वजह से मॉडर्न आर्कियोलॉजी की बेस स्टार्ट हुई। आज हम माया के ग्लिफ्स पढ़ सकते हैं और लीडर टेक्नोलॉजी की मदद से जंगल के नीचे छुपे हजारों नए स्ट्रक्चर्स दरियाफ्त किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आज हम क्लाइमेट क्राइसिस और मौसमियाती चैलेंजेस से लड़ने के लिए माया सिविलाइजेशन से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम माया सिविलाइजेशन के एक्सपीरियंस, उनके एडवांस नॉलेज से कुछ सबक हासिल करके अपनी ज़मीन और अपने माहौल को कुछ महफूज कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।